Sri Srinatha Madhava to bestow us His blessings and causeless mercy, that this is a small attempt and humble attempt to please our Gurudev. So today we have with us esteemed guests, Dheeraj Prabhuji, and we have Mamta Mata, Ms. Dubai, and please come the page. He has also come along with his parents and also his dear grandmother, and the two wonderful children, Jainam and Jeevika. Actually, this farmhouse belongs to Prabhu and Mata. Please, Ali Mataji. And we are extremely indebted to this wonderful family who have been supporting week after week. Please give them all a big hand. We are able to conduct programs is only because of their kind support and all the assistance that they are giving us week after week. And Prabhu Mata, हम बहुत बहुत आभार हैं आपके इस आपकी जो this kind of क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी जो कर रहे हैं हमारे लिए, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, आपका पूरा परिवार के लिए हमारी तरफ से। So, where is Jaina? Just check Prabhu, just check for the children, Jainam and Jeevika. ये जो फार्म हाउस है उनका बेटे और बेटी के नाम से ही है। Jainam is their son and Jeevika is their daughter. They're wonder kids, and they're going to present something else in front to us today. Please watch carefully, and there is a lot of things that you can draw from them. They are a great source of inspiration, and these children have been wonderfully brought up and groomed by these wonderful parents. So the children will be arriving in a short while from now, but just when we are awaiting, just want to give you a brief idea of what this whole session is all about. So as you all know, and for the past 2 months we have started a wellness campaign wherein we had appointed about 6 ambassadors, wellness ambassadors, who had addressed, gone to different Bhakti Vikshas, and they had created awareness of these 4 wellness domains, namely the physical domain, financial, mental and emotional, and spiritual and devotional. The whole purpose is, unless and until you are balanced in the first 3 wellness, you really will not be able to perform any devotion that really affects your devotion services. So in order to create this, we had done a pilot run. Come better. Jaina, come. So this is their wonderful son, Jaina. And this is Jeevika. Come. Wait a bit. Yeah. So we have created this awareness, and today what we have done is we have opened this out to a wider audience, because those pilot programs was done for few Bhakti Vikshas, but we couldn't open it up to all. So today we have tried to open it to a wider audience. And also we have invited subject matter experts from each of the fields so that they created awareness. And then, God willing, going forward we'll have one full session for one particular domain, wherein we'll have something like a pool systems, and you can have one-on-one discussion with them. So this is the whole thing. The basic purpose or the reason behind having this wellness program is we all have to progress in bhakti. That is the final goal of our life. Because all other things you can do, but if that doesn't culminate into devotion, then whatever you do is practical waste. Shrama evaihi kevalam. So that's the whole intention. So I request each one of you to be there present till the end of the session. We'll be having experts coming in. We'll have a brief I think the children are going to say something for us.
which is a great source of inspiration, as I said, and then we'll be going on with the wellness show. So over to you, Jainam and Jivika. Hare Krishna. Take it. Yes, please. Mamta Madam. किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है यदि बुलंद हो हौसले तो जाती है। सर उठाकर यदि आसमान देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल जाती है। चैलेंजेस कभी आसान नहीं लगते और वो तब तक इम्पॉसिबल लगते हैं जब तक तुम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही 50 दिन में इस इवेंट करने वाले और जीविका धीरज जैन ने ये चैलेंज लिया। इम्पॉसिबल है पर उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ सब कुछ पॉसिबल कर दिया। देखिए कैसे उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। दोस्तों ये कहानी है एक सपने की जो सिर्फ सोच नहीं बल्कि दिल से निकला हुआ एक जज्बा है। जैनम और जीविका के अंदर एक आग थी, एक विजन था जो हर पल उनके जुनून से सजाया गया। हर साल एक नया चैलेंज, एक नया लक्ष्य और एक नया सपना। 2020 में उन्होंने एक रिलीजियस बुक को 50 दिन में लर्न किया। 2021 में 50 नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड किए। 2022 में 50 दिन में 50 सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताबें पढ़ी और अपनी सोच और नजरिए को बदला। 2023 में 50 नए स्किल सीखे जो उनकी जिंदगी को और भी रंगीन बना गए। साथ ही भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाया और उनके कदमों पे चलने का प्रयास किया। 2024 आया और उन दोनों ने सोचा कि इस साल कौन सा चैलेंज लेना चाहिए। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की। उन्होंने कहा हमने इतना कुछ नॉलेज गेन किया, क्यों ना हम दूसरों के साथ ये नॉलेज शेयर करें। तब उनके पापा धीरज जी जैन ने कहा भारत ही मेरा देश है, वहीं से शुरुआत करते हैं। और मार्च 2024 को मिशन 50 का जन्म हुआ। 12 जुलाई को जैनम और जीविका ने अपने सपने को हकीकत बनाने का फैसला किया। न बुकिंग थी न प्लान, सिर्फ एक जज्बा और विश्वास लेकर वो भारत के सफर पर निकल पड़े। पहले दिन सिर्फ एक बुकिंग मिली, दूसरे दिन 2 बुकिंग्स मिली, तीसरे और चौथे दिन कोई बुकिंग नहीं मिली। लेकिन 5वें दिन सब कुछ बदल गया और उन्हें बैक टू बैक इवेंट्स की बुकिंग्स। ये मिशन सिर्फ इवेंट नहीं, एक था जो स्कूल्स, कॉलेजेस, एनजीओज, हॉस्टल्स, बिजनेसेस और जैन स्थानक तक पहुंचा। जैनम जीविका ने साइंस के स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया और हॉस्टल्स और ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी 10 साल की बिजनेस जर्नी से दिखाया कैसे पैशन से करियर बनता है। उन्होंने अपने टेक ड्रिवन आइडियाज और इनोवेशंस के राज बताए जो उनकी डेली स्ट्रगल्स को आसान और जर्नी को इंपैक्टफुल बनाते हैं। जैन स्थानक में उन्होंने बताया कैसे प्रभु महावीर के सिद्धांतों ने उन्हें हर रोज के चैलेंजेस से जीतने की ताकत दी और उनकी जिंदगी को एक नए रंग से रोशन कर दिया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कभी हेल्थ इश्यूज, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो कभी टाइट शेड्यूल्स ने थकने का मौका ही नहीं दिया। एक पल ऐसा भी आया जब स्टूडेंट्स उनके ऑटोग्राफ्स लेने लगे। ममता जी ने हैरानी से पूछा ऑटोग्राफ क्यों? स्टूडेंट्स बोले ये हमारे लिए मोटिवेशन है ताकि हर सुबह ये हमें याद दिलाए कि हमें भी जैनम और जीविका जैसा बनना है। ये सफर था 50 दिन में 100 इवेंट पूरा करने का। लेकिन जैनम, जीविका और OneXL टीम के जुनून ने रफ्तार इतनी बढ़ा दी कि सिर्फ 40 दिन में ही 100 इवेंट हो गए। और फिर बचा हुआ जुनून 10 दिन में भी थमा नहीं। उन्होंने 120 इवेंट्स पूरे करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 120 इवेंट्स इन 50 डेज। जब वो 31 अगस्त को इंडिया से दुबई वापस आए, उनके पास 250 प्लस से ज्यादा इवेंट में पैसा में हर जगह से लोग उनके साथ जुड़ने के लिए बेकरार हैं और ये मिशन एक ब्लॉकबस्टर बन गया है।
जैनब और जीविका का सपना है दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना। उनका मानना है कि नॉलेज शेयर करने से सबकी जिंदगी बेहतर होती है। उनके पेरेंट्स जो अपनी कामयाबी की ऊंची मंजिल पर खुद अपने कदमों से पहुंचे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उनके अपने बच्चों की रोशनी उनसे भी ज्यादा चमकेगी। जैनब जीविका के पास हर जरूरत के लिए रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्होंने बिना कोई रिश्तों के सहारे, बिना कोई मार्केटिंग के खुद अपनी सच्ची लगन और डेडिकेशन से दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। उनके पेरेंट्स के दिल में एक अजीब सी गर्व की लहर थी। यही तो असली जीत होती है, जब आपका काम इतना जबरदस्त हो कि दुनिया आपके काम और मेहनत की मिसाल दे। उनकी लीडरशिप, इनोवेशन और इंस्पायरिंग चेंज के लिए उन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले। अवार्ड सिर्फ ट्रॉफीज नहीं होते, ये प्रूफ होते हैं उन जिंदगियों का जो उन्होंने टच किए और उन सपनों का जो उन्होंने इग्नाइट किए। मिशन के सफर के बाद उन्होंने अपने जज्बात और सीख को शब्दों में उतार एक किताब पब्लिश करी, ड्रीम्स टू रियलिटी। उस किताब को लोगों ने सिर्फ पढ़ा नहीं, महसूस भी किया, और उस किताब को इतना प्यार मिला कि जैनब और जीविका अब 2 और किताबें लिख रहे हैं जो जल्द ही पब्लिश करने वाले हैं। इनकी कामयाबी का असर इतना गहरा था कि जिन्होंने अपनी ड्रीम कंपनी शुरू करने का सपना देखा था, उन्होंने अपने सपने को जैनब और जीविका से जोड़ दिया और उन्हें अपनी कंपनीज के ओपनिंग का हिस्सा बनाया। ये 50 डेज मिशन देखकर एक बात दिल को छू गई है, जब जज्बात सही हो और खुद पर विश्वास मजबूत हो तो जिंदगी का असली मतलब तब है जब आप अपनी मंजिल के साथ दूसरों के सफर को भी रोशन कर दो। मिशन 50 सिर्फ एक चैलेंज नहीं, ये एक जुनून था, एक नई सोच, एक नए दौर की शुरुआत, एक कहानी जो सिर्फ कल तक नहीं बल्कि हमेशा याद रहेगी। जैसे कार को चलने के लिए 4 व्हील्स चाहिए होते हैं, वैसे ही जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए 4 फाउंडेशंस